خداوند کا شکر ہو، اس نے ہمیں اس سال کے آخر تک پھر پہنچایا ہے۔ جس طور پر دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اس زمین کے اوپر ہو رہا ہے، کتنا پیارا خداوند ہے جس نے ہر گزرتا دن ہمیں بخشا ہے۔ آمین۔ اور ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسی زور میں اور اسی قوت میں ہمیں رکھے گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو کہ کرسمس کا دوسرا ویک چل رہا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا فیسٹیول نہیں ہے، کوئی ایسا تہوار نہیں ہے جو مہینوں پہلے سٹارٹ ہو جائے۔ آمین۔ اس کی ریزن یہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے لیے انتظار بہت ہوا تھا۔ آمین۔ بہت انتظار ہوا تھا، لہذا اس کو منانے والے بڑے خوشی کے ساتھ، بڑی روح کے ساتھ مناتے ہیں، اور ہمیں اسی زور میں منانا چاہیے۔ ان سب کے لیے خدا ان کا کلام کیا فرماتا ہے جو بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس سیزن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب اس کی 31ویں آیت۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا انتظار کرنے والے، ویٹنگ اپون دا لارڈ، خداوند کا انتظار کرنے والے، اس زمین کے اوپر اگر کسی کا انتظار ہے، انتظار تھا اور انتظار ہے، اور وہ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ بولیے، یسوع المسیح۔ آمین۔ نبیوں نے، سارے نبیوں نے اسی کی بابت بات کی، ان کی آنکھیں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، انسانوں کی آنکھیں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، وہ آئے گا۔ آمین۔ ان کو آج میں 2 معنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم خداوند کا ہر بات کے لیے انتظار کرتے ہیں، کسی کام کے لیے کہ خداوند کے قدموں میں جب بیٹھتے ہیں کہ خداوند اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے، اس معنوں میں، اور دوسرا خداوند کا انتظار کرنے والے، پریز دی لارڈ، خداوند کا انتظار کرنے والے، اور انتظار کرنے والے کی جو ہے ہمت کئیوں کی ختم ہو جاتی ہے، کئیوں کا زور گھٹ جاتا ہے، انتظار کرتے ہیں جب بے چین اور لاچار ہو جاتے ہیں، کئی لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ اپنا اعتماد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کھو دیتے ہیں، لیکن جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں بڑے صبر کے ساتھ، ان کو جو ہے روزانہ قوت ملتی ہے، ان کو روزانہ زور ملتا ہے، اور بائبل فرماتی ہے اثر نو زور حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ اثر نو، ایک نیا زور ان کی زندگیوں کے اندر وہ آتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کرائسٹ، یسوع مسیح اس زمین کے اوپر وہ شخص ہے جس کا سب سے زیادہ انتظار ہے۔ آمین۔
पूरी बाइबल में आप पढ़िए, ये वो हस्ती है जिसका इंतजार किया गया है, और ये वो है जिस पर फरिश्ते भी निगाह करने के मुश्ताक थे। आमीन। उसका इंतजार करते थे, उसके पर नजर करने के क्या थे, वो मुश्ताक थे। हम भी उसकी झलक देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा, वो जिस समय जाहिर हुआ रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को बोलिए दिखाई दिया। आमीन। तो गोया आप ये देखिए कि इस जमीन के ऊपर जिसका इंतजार है, था और है, और वो बोलिए कौन है। इसलिए इस जमीन का, बल्कि यूं कह लीजिए पूरी इस कायनात का जो महवर कौन हुआ फिर? हालेलुया बोलिए। इस कायनात का, इस जमीन का महवर कौन है? प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल ये फरमाती है, खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नो क्या करते हैं? बोलिए, जोर हासिल करते हैं। आमीन। और आप हैरान होंगे कि जो लोग खुदावंद का इंतजार करते हैं, खुदावंद उनको मुबारक कहता है। आमीन। खुदावंद को क्या कहता है? मुबारक है वो जो खुदावंद का क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। और अफसोस उन पर जो खुदावंद का इंतजार नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा है, जब आप यशायाह 25वां बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और उस वक्त यूं कहा जाएगा, और उस वक्त लो ये हमारा खुदा है। आमीन। लो ये हमारा, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदावंद है। दिस इज लॉर्ड। ये यहोवा है। हम इसके इंतजार में थे। हम इसके क्या थे? हम उसकी निजात से खुश खुर्म होंगे। हम उसकी निजात में आप क्या करेंगे? खुश खुर्म होंगे। हालेलुया। और जो है क्या करेंगे? कैरल्स हो रही हैं, गीत हो रहे हैं, नगमे हो रहे हैं, जो है आवाजें बुलंद हो रही हैं। हम उसकी निजात में क्या होंगे? खुश खुर्म होंगे। क्यों? हम उसके इंतजार में थे। उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है। और बताया गया, लो ये है तुम्हारा खुदा जिसका तुम इंतजार करते थे, और उसको जाकर सजदा करो, उसके पास जब डेरा लगाओ। आमीन। और जो आंख उसको देखता था, उसको ये जो है ये यकीन हो जाता था, ये है हमारा खुदा। प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी राह तकते थे। ठीक है, राह तक रहे थे और वही हमको बचाएगा। ये दो मायनों में है। एक जो है पहली आमद और दूसरी आमद, दोनों के लिए है। ठीक है, ये खुदावंद है। ये कौन है? खुदावंद है। लिहाजा यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। और इसलिए जब आप मत्ती की इंजील में पढ़ें तो यीशु मसीह ने फकीहों फरीसियों को कहा, तुम किस तरह जो है अपना तुम कहते हो कि मसीह दाऊद का बेटा है। मसीह क्या है? वो दाऊद का बेटा है। तो यीशु मसीह ने उनकी करेक्शन की। ठीक है, कहता है कि दाऊद तो आप रूह की हिदायत से क्या कहता है? उसको अपना खुदावंद कहता है। उसको क्या कहता है? अपना खुदावंद कहता है। वो क्या कहता है? खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा खुदावंद, चुनांचे यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है, जो सारी कुदरत और सारी कुव्वत या इख्तियार का वो मालिक है। और मुबारक है जो उसका इंतजार करते हैं
اور جنہوں نے جو ہے جنہوں نے اس کی راہ تکی ہے، جنہوں نے اس کا انتظار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے یہ خداوند ہے. Praise the Lord. لہذا کرسمس کے اوپر جو ہے آپ جو ہے کس طور پر جو ہے مسیح کو کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے بولیے؟ یہ خداوند ہے. آمین. آج جو ہے خداوند آیا ہے، اور آج شاید دنیا جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتی، لیکن ایک دن آنے والا ہے، فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہر زبان اقرار کرے گی، ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، اور کیا کہے گا؟ مسیح ہی بولیے خداوند ہے. پریز دی لارڈ. اور وہ بھی کہیں گے، ہر زبان اقرار کرے گی، ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا. اور اس لیے جو ہے پوری دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے. کاش ہر ایک کہے لو یہ خداوند ہے. پریز دی لارڈ. اس وقت یوں کہا جائے گا یہ ہمارا خدا ہے. ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا، اور اس نے بچایا. آمین. اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ بچایا ہے. اس پہلی آمد میں ہم اقرار اور اعلان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمیں بچا لیا ہے، ہمیں نجات دی ہے، ہمیں چھٹکارا دیا ہے، ہمیں شفا دی ہے، ہمیں رہائی دی ہے، ہمیں برکت دی ہے، ہمیں بادشاہ دی ہے، ہمیں اپنا بنا لیا ہے. پریز دی لارڈ. ہم اس کی نجات میں اب کیا ہوں؟ ہم اس کی نجات میں کیا کریں گے؟ خوش و خرم ہوں گے. ہم اس کی نجات میں کیا ہوں گے؟ بولیے خوش و خرم ہوں گے. ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں. آمین. ہر وقت اس کی نجات کے اندر خوش و خرم ہو، شکر گزاری کے ساتھ ہر دن یہ ایڈونٹ سیزن کے اندر آپ ہر دن کیا کریں؟ خوشی و خرمی کو منایا کریں. آمین. ٹھیک ہے. اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. ہاللیلویہ. آہا یسوع آیا، آہا یسوع آیا، آہا یسوع آیا. ٹھیک ہے. اس طور پر ہر روزانہ کی جو ہے روزانہ یہ کہا کرے خداوند جو ہے تو آ گیا ہے، تو نے مجھے بچا لیا ہے، تو نے مجھے چھڑا لیا ہے. پریز دی لارڈ. حنا نے جو ہے خداوند کے آنے کے اوپر جو اس کا انتظار کر رہی تھی، جو ہے سالوں سال سے اس کے انتظار میں تھی، وہ ایسے اٹھی، وہ جو بزرگ عورت ایسے اٹھی جیسے کوئی جوان اٹھتا ہے. آمین. کیوں؟ کیونکہ اس کا انتظار، جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ کیسے جو ہے ہوں گے؟ وہ اثر نو زور حاصل کرتے ہیں. وہ بڑے زور سے اٹھی، اس نے بڑی قوت کا مظاہرہ کیا، اور جو ہے اس کی زبان کھول کر جو ہے وہ شکر گزاری کرنے لگی کہ جو تسلی کے منتظر تھی، یروشلم کے چھٹکارے کی منتظر تھے، اور انہوں نے شکر گزاری کرنا شروع کر دی. لو یہ خداوند ہے. آمین. لو یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہم کو بچائے گا، ہم اس کی نجات میں خوش و خرم ہوں گے. اسی دوران میں ایک بزرگ شمعون تھا. ٹھیک ہے. وہ اس کو روح القدس سے ہدایت حاصل ہوئی تھی، جب تک کہ خداوند کے مسیح کو نہیں دیکھ لیتا تب تک جو ہے وہ موت کو نہیں دیکھے گا. اس نے جب مسیح کو دیکھ لیا، اسے کہا خداوند. کیا کہا؟ خداوند. خداوند. ہاللیلویہ. کیا کہا اس نے؟ خداوند. اور آگے کیا رہی؟ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. پریز دی لارڈ. کیا کہا؟ خداوند. یہ ہے خداوند. خداوند میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لی ہے. اپنے خادم کو کیا کر؟ رخصت کر. پریز دی لارڈ. اس لیے عزیز بھائی بھائیو، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ انتظار. جو ہے ہر وقت انتظار میں رہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جو ہے کس طریقے کے ساتھ انتظار کرنا ہے؟ انتظار کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک شخص ہے جو بڑا اچھے طریقے کے ساتھ انتظار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے. ہم جو ہے اسے دوسری آمد کے لیے اور پہلی آمد کے لیے ہر طرح سے جو ہے وہ منتظر رہا کریں. جو ہے انتظار کیسے کرنا ہے آپ کو؟ حبقوق 2 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے،
मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा। आमीन। मैं अपनी दीदगाह पर क्या करूंगा? दीदगाह, दीदगाह जहां पर खड़े होकर देखा जाता है, मैं दीदगाह पर खड़ा होऊंगा और बुर्ज पर भी चढ़ जाऊंगा। बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। आमीन। लिहाजा हमने किस तरीके के साथ उसका इंतजार करना है? बोलिए, अपनी दीदगाह पर खड़ा होकर बुर्ज पर चढ़कर क्या करना है? उसका इंतजार करना है। हमें उसने निजात दी है, उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें बचाया है। देखिए हन्ना और शिमौन, बुजुर्ग शिमौन किस तौर पर अपनी दीदगाह पर खड़े इंतजार करते हैं। एक ने तो अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, मैं तो खुदावंद का इंतजार करती हूं। एक ने जो है रूह कुदस से उसे हदायत मिल गई, तूने हमेशा एक ही बात कहनी है। तुझसे पूछा जाए कि तू जो है इतना बुजुर्ग हो गया है, क्या तेरे मरने को दिल करता है? हाँ, मेरा मरने को तो दिल करता है, लेकिन मुझे तो अपने खुदावंद का इंतजार है। जब तक मेरी आंखें उसका दीदार हासिल ना कर ले, मैं कैसे रुखसत हो जाऊं? हमारी आंखें उसके दीदार के बगैर कैसे जमीन से रुखसत हो जाएं? आमीन। किस तरीके के साथ? जब तक हमें उसका दीदार हासिल ना हो, अगर जो है उसका आप तो जस्म के ऊपर बिलीव करते हैं, जाकर जो है जब आप चरनी में भी जाए, चरनी के पर भी जाया करें, ठीक है, बैतलहम में जाया करें, बैतलहम में जाते हैं जो है कलवरी के पहाड़ पर भी जाया करें। आमीन। जहां पर मसीह जो है वो क्या हुआ है? मसलूब हुआ है। उसकी खबर के खाली खबर का भी दीदार किया करे, जो आपकी रास्तबाजी के ऊपर क्या है? वो मोहर है। और अपनी दीदगाह पर खड़े होकर इंतजार भी किया करे। ऐ खुदावंद, जो नजात तूने मुझे दी है, मैं उसमें खुश खुरम हूं, आ मुझे लेने के लिए आ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो अपनी दीदगाह के पर खड़े होकर इंतजार करते हैं, उसका बुर्ज पर चढ़कर उसका इंतजार करते हैं, उनकी बाबत कहा गया है सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। आमीन। जो इंतजार करते हैं उनकी बाबत जो है क्या कहा जाता है? मुबारक है तू जो ईमान लाई, मुबारक है तू जो ईमान लाई। लिहाजा जो इंतजार करते हैं वो ईमान वाले हैं। जो इंतजार करते हैं वो कौन है? बोलिए, ईमान वाले हैं। तू जो इंतजार करती थी अपने मसीहा का, अपने जो है मुनज्जी यीशु का, ठीक है, तू मुबारक है जो ईमान लाई। और जो दीदगाह पर खड़े होकर इंतजार करते हैं, वही यीशु का, वही मसीह का, वही खुदामंद का जो है वो दीदार अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करते हैं। और उनके हक में ये कहा जाता है, मुबारक है तू जो ईमान लाया, मुबारक है तू जो ईमान लाई। आमीन। और यही वो लोग हैं जो ईमान से जिंदा रहेंगे। ये वो लोग हैं जो है जो ईमान से जिंदा रहेंगे, जिनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो अफरा तफरी है, जिनकी जिंदगियों के अंदर नाउमीदी और मायूसी है। उनके लिए यीशु मसीह उम्मीद बनकर जो है जमीन के ऊपर उतरा है। और उनसे पूछ लीजिए जो इंतजार करते थे कि उन्होंने अपने खुदावंद का जो है वो दीदार हासिल किया। आमीन। और उसको तलाश करने के लिए कहां कहां से लोग आ गए कि उसका दीदार हासिल करें। आमीन। जो है मजूसी कहां से निकले और आ रहे हैं पूरब से यीशु मसीह का दीदार हासिल करने के लिए। लेकिन हेरोदीस जो है वो निकम्मा बेवकूफ शख्स उसका इंतजार नहीं कर रहा, जो है उसका दीदार हासिल नहीं कर रहा है। जो यीशु मसीह के मुंतजर उसे लॉर्ड खुदावन मानते हैं, वो उसके पास भागे भागे जाएंगे। आमीन। और वो भी उनके पास जो है वो क्या करेगा? भागा भागा आएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन अपने लोगों के ऊपर जो है मेहरबानी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। खुदा उनको बरकत देने के लिए जो है वो तैयार रहता है। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें क्या करते रहना चाहिए? इंतजार। प्रेज द लॉर्ड। कहां पर खड़े होंगे? अपनी
दीदगाह पर खड़े होंगे, बुर्ज पर क्या करेंगे बोलिए, चढ़ जाएंगे। क्या करने के लिए? इन ठीक है कि वो मुझे क्या कहता है, वो मेरे मेरे हक में क्या फरमाता है। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगियों के अंदर जो है तसल्ली और इत्मीनान आएगा, और जो है उनकी जिंदगी के अंदर जो है खुशी और खुरमी नजर आएगी। अगर जो है क्रिसमस के मौका के ऊपर जो है सारे सीजन के अंदर अगर हम निजात पे खुश और खुरम नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि जो हम ठीक तौर पर उसका इंतजार नहीं करते हैं। जिन्होंने उसका इंतजार किया है, उन्होंने खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर लिया है, और वो जो उसकी निजात में क्या करते हैं, खुश खुर्रम होते हैं। उनके होंठों पर गीत और नगमे होते हैं, उनके अंदर रागनियां होती हैं, और वो ऐलान और इकरार करते रहते हैं कि खुदावंद हमें छुड़ाएगा, ये है जो हमें क्या करेगा, छुड़ाएगा, ये है जो हमें बचाएगा। और प्रेज द लॉर्ड, उसने बचाया है, उसने छुड़ाया है, और आज भी वो ऐसा करता है। वो कल आज बल्कि अब तक क्या है बोलिए, यकसा है। और आज भी जो है अगर कोई शख्स जकड़ा हुआ है, जो है वो पकड़ में है बोली इसके हाथों, और उसके हाथों दुख उठा रहा है, मुसीबत उठा रहा है, वो उनको मार जो है उनको निकालने, उनको रहा करने और उन्हें जिंदगी बख्शने में जो वो कादर खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। आज इस प्रेयर और हीलिंग मीटिंग में जो है खुदा छुड़ाने बचाने में कादर है, और जो उसका इंतजार करते हैं कि आज भी वो मेरे पास आकर जब मुझे बरकत देगा, जो है जिस तरह 2000 साल पहले वो आया है, और अभी भी जब मैं उसे पुकारता हूं वो मेरे पास आ जाता है। जब भी मैं उसके कदमों में आता हूं वो मुझे जो है वो बरकत अता करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन जो है वो क्या करना है, इंतजार करता है। खुदावन भी इंतजार करता है कि मैं इसे क्या करूं, बरकत अता करूं। और खुदावन ये भी देखता है कि ये किस तरह से जो है वो इंतजार करता है। खुदा मेहरबानी करने के लिए मुंतजर है। खुदा मेहरबानी के लिए क्या है, वो मुंतजर है। उसकी आंखें देखती हैं कि मैं किसके ऊपर मेहरबानी करूं, और जो उसके इंतजार करने के लिए जो है उसके कदमों में झुक जाता है, उसके पास आ जाता है, उस पर वो मेहरबानी कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर अपना फजल कर देता है, उस पर अपना करम कर देता है, उसको शिफा देता है। शिफा की जरूरत है, उसे क्या करता है, शिफा देता है। उसे निजात की जरूरत है, उसे निजात दे देता है। वो जो है मुश्किल के अंदर है, उसे उसकी मुश्किल से उसे रहाई अता कर सकता है। वो मेहरबानी करने के लिए इस वक्त इंतजार में है। हम भी इसका क्या करें, इंतजार करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका क्या करें, इंतजार करें, यानी उसके कदमों में झुक जाएं, अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं। मेरी आंखें कहां पर लगी होनी चाहिए, कहां पर लगी होनी चाहिए, उसकी तरफ लगी रहनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको हकीकत बताऊं, जो उसके जिन्होंने बैतलहम में दीदार लिया है, वो कलवरी तक पहुंच जाएंगे। जिन्होंने कलवरी के ऊपर खड़े हुए हैं, वो जो है उस पहाड़ पर भी चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदावन के पहाड़ पर भी खड़े होंगे। आमीन। ये सफर है, ये सफर है, इंतजार का सफर है। ये स्टार्ट होता है बैतलहम से कलवरी तक, और कलवरी से सीधा आसमान तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा की किंगडम के अंदर, इसलिए हम अपनी जिंदगी को इस तरीके के साथ जमीन के ऊपर तश्कील दें, इस तौर पर अपनी दीदगाह को साफ सुथरा कर लें, इस तौर पर अपने बुर्ज को मजबूत कर दें कि वहां से बुर्ज पर हिले ही ना। मालूम नहीं कि इस वक्त दुनिया के अंदर कैसी अफरा तफरी पाई जाती है, मारा मारी पाई जाती है। और हबकूक के दिनों में भी यही हालात थे। और जो है किस पर कौम जो है बाबुल किस पर जो है यहूदियों के ऊपर वो चढ़ा आ रहा था। उनके दिल जो है होल खा रहे थे कि क्या होगा। लेकिन इस सारे दरमियानिया के अंदर खुदावन का नबी खड़ा हुआ है, दीदगाह के ऊपर खड़ा हुआ है। उसने अपना बुर्ज सीधा कर दिया है। मैं दीदगाह के ऊपर खड़ा हूँगा। अजीज बहन भाइयों, जो है
गौर से सुनिए, ठीक है। इसको जो मर्जी आप समझ लीजिए, जब तक कि कलीसिया और जब तक उसके लोग जो है वो ठीक तरीके के साथ अपनी दीदगाह के ऊपर खड़े नहीं होंगे, ठीक तौर पर अपने बुर्जों के ऊपर जो है वो खड़े नहीं होंगे, तब तक जो है खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों के ऊपर वो नाज़िल नहीं होगा, तब तक उम्मीद की किरण जो है वो नहीं जागेगी, जब तक ईमान के साथ जो है उसके मुंतजर नहीं होंगे, तब तक जो है दुश्मन को शिकस्त नहीं होगी, नहीं तो वो सबको निगल कर जो है खत्म कर देगा और जो है उसकी जो है हथियार हमारे ऊपर चल जाएंगे। जो मुंह से आग बरसाता है वो जो है निगल कर जो है जलाकर झुलस कर जो है वो रख देगा। इससे पहले कि ये हालात आए, अपनी दीदगाहों को ठीक कर कर, अपने बुर्जों को ठीक कर कर उस पर खड़े हो जाइए और देखिए कि खुदावंद आपसे क्या कहता है। और जब आप जो है खड़े होंगे और ये बात आपकी पर वारद होगी और ये आपके लिए भी यही कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदावन है जिसकी हम राह तकते थे। ये खुदावन है, हालेलुया। ये क्या है बोलिए? ये खुदावन है जिसकी हम राह जो है वो तकते थे। ये हमको बचाएगा, ये खुदावन है, हम इसका इंतजार करते थे, हम इसकी निजात में खुश खुरम होंगे। निजात जो उसने हमें दी है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी खुशी, इसकी खुरमी के अंदर रोज़ाना रहिए, कलाम दुआ के अंदर मुंतज़र रहे। हालात सख्त आ रहे हैं लेकिन जो दीदगाह के पर खड़े हैं वो दुश्मन का पूरा मुकाबला करने के लिए मुकम्मल रेडी हैं। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाइए और दुआ करना शुरू करें। मैं मुंतज़र हूँ खुदावन खुदाम।